نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر بہت سے ہیں جو ڈرائیو کرتے ہیں, اگر ہم کسی رانگ روڈ پہ چلے جاتے ہیں تو کیا آپ جاتے رہو گے؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں رانگ جا رہا ہوں, then you come back, you drive back. That's how repentance works. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اپنا رانگ جو ہے روڈ اس کو چھوڑ کے تو رائٹ کو فالو کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم چلتے جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رانگ جو ڈور ہے, رانگ جو روڈ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. دین پھر بھی ہم چلتے جاتے ہیں, ڈرائیو کرتے جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے جب اینڈ پہ جاتے ہیں ہمیں بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے, اسٹریس, ڈسٹریس, ورری, یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہے. جب ہم اگنور کرتے ہیں پرپسلی, ہمیں پتہ ہے کہ ہم رانگ روڈ پہ جا رہے ہیں, but we don't even think about it. دوسرا تواریخ اس کا 7 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے, تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا. خداوند فرماتے ہیں کہ جب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر توبہ کریں. خاکسار کیسے ہم بنتے ہیں؟ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں, ہم اپنے آپ کو خالی کریں, اپنے آپ کو خاکسار بنائیں, کیونکہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ خدا کے خدا, بادشاہوں کے بادشاہ اور ہولی آف ہولیز. اپنے آپ کو خالی کریں کہ باپ میں تیرے قدموں میں آیا ہوں, میں اپنے آپ کو خالی کرتی ہوں, میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں, مجھے تو اپنی روح سے بھر دے, اپنے نالج سے بھر دے. ہم اپنے آپ کو, ہم تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں, ہم کیا ہے؟ We are dust and we return back to dust. We are nothing more than that. ہماری ویلیو کب ہوتی ہے؟ جب خدا کی روح ہم میں آتی ہے, تب ہماری ویلیو بنتی ہے. جب وہ ہمیں پیار کرتے ہیں تو تب ہماری جو ویلیو ہے وہ بنتی ہے. اس کے بغیر ہم we are just dust. اگر ہم میں خدا کی روح نہیں تو ہم ڈسٹ ہیں. پھر خدا کہتے ہیں کہ میں دعا سنوں گا. اگر تم خاکسار ہو جاتے ہو, اپنے برے کاموں سے باز آتے ہو, تو میرے دیدار کے طلبگار رہتے ہو, تو میں ضرور آپ کی دعاؤں کا جواب دوں گا. جب آپ ریپینٹ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اور ریپینٹ ہمیں کیوں کرنا ہے؟ کیوں ہم نے ریپینٹ کرنا ہے؟ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, چھوٹے چھوٹے گناہ. داؤد کہتا ہے, زبور نویس کہتا ہے کہ میں سوچ میں گناہ کرتا ہوں. It's very important, essential کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ this is basic, essential for the life. یہ بیسک ہے لائف کے لیے کہ ہم توبہ کریں, تاکہ خدا کی مرسی ہمیں ملے. خدا کی جو اس کی فیور ہے, اس کی مرسی اور جو سلویشن ہے, وہ خدا کی طرف سے بہت بڑا گفٹ, سب سے بڑا گفٹ ہے سلویشن. یہ آسمان کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا گفٹ ہے. زبور 51:5 میں لکھا ہے کہ زبور بھی کہتا ہے کہ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا. جب ہم ماں کے پیٹ میں سے گناہگار ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ملوثی گناہ. ایک تو ہم بڑے ہو کے گناہ کرتے ہیں,
करते हैं, जरूरी है कि हम हर रोज रिपेंट करें। कभी आपसे कभी गलती हुई है तो रिपेंट किया, गो ऑन योर नीज, रिपेंट। जो फादर है वो मर्सीफुल है, वो हमारे गुनाहों को, हमारी रिपेंटेंस को, हमारी तौबा जब हम करते हैं, खाको रात में बैठ जाते हैं, then he hear our prayers, हमारी वो दुआओं को सुनते हैं और हमें जवाब देते हैं। यकीन करें, जब अपने आप को खाली करके खाकसार बनाकर हम उसके कदमों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बाप तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं, मेरी मदद कर, मुझे तेरी जरूरत है, और वो हमें माफ करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम रिपेंट करें। रोमियो के खत में लिखा है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा की ग्लोरी से महरूम हो गए। हम गुनहगार हैं, we are sinners, और खुदा की ग्लोरी से हम महरूम हैं। जब हम में सिन होता है, जब हम में गुनाह होता है, तो हमारी जो लेकिन जो हम में गुनाह उसको वो प्यार नहीं करते, इसलिए हम उसकी ग्लोरी से दूर हो जाते हैं और उसकी फेवर हमारे ऊपर खत्म हो जाती है। और प्रभु में लिखा है कि जो अपने गुनाहों का इकरार करता है उनको वो बरकत देता है और उस पर रहमत होगी। जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, जो अपने गुनाहों का इकरार करता है वो कामयाब होगा, जो अपने गुनाहों को तर्क करता है वो कामयाब होगा, प्रोस्पर होगा, क्योंकि खुदावंद की रहमत उस पर है। और जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब नहीं होगा। हमें अपने गुनाहों को छुपाना नहीं, बल्कि जब हमसे गुनाह होता है कहेंगे बाप मैंने तेरा और आसमान का गुनाह किया, मुझे अपने नौकरों की तरह ही रख। और बाप जो कहते हैं नौकर नहीं रखते, कहते हैं यू आर माय सन, यू आर माय डॉटर, यू आर नॉट माय सर्वेंट। जो प्रोडिगल सन था, मुस्लिम बेटा, उसने क्या किया? जब उसने अपने बाप और उसने आसमान और जमीन के खिलाफ गुनाह किया, बाप के खिलाफ गुनाह किया, तो क्या हुआ? वो अपना माल लेकर चला गया और जब उसको मुश्किलों मुसीबतों का सामना करना पड़ा तो वो वापस आया। उसे तहैया किया कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसको कहूंगा कि बाप मुझे अपने नौकरों की तरह ही रखे, मैंने तेरा और आसमान का गुनाह किया है। और क्या बाप ने उसको नौकरी की तरह रखा? नहीं। जब वो अपने बाप के पास आता है, बाप ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था, दोनों बाजू खोले हुए, कहते कि बेटा मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रहा था। और बाप ने उसके लिए अच्छा सूट बनवाया, अंगूठी बनाई, बड़ी सी पार्टी की, क्योंकि बाप खुश था। आज भी जब हम गुनाह करते हैं हमें रिपेंट करना है और बाप के पास आना है कि बाप मैंने तेरा और आसमान का गुनाह किया, मुझे अपने नौकरों की तरह ही रख ले। और जब हम नौकर कहते हैं तो बाप कहता है नहीं, यू आर नॉट माय सर्वेंट, यू आर माय सन, यू आर माय डॉटर, आई हैव अ बेस्ट फॉर यू। जैसे 99 लोगों ने रिपेंट किया, कैसे उन्होंने रिपेंट किया? 3 दिन उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, छोटे बेबीज को, बच्चों को भी ना कुछ दिया खाने के लिए, और रिपेंट किया। जो बादशाह था उसने अपना बादशाही लिबास उतार फेंका और वो सैक के क्लोथ पहनकर वो कहते कि खाक के ऊपर बैठ गया, रोया। और खुदावन ने अपने माइंड को क्या किया? चेंज कर लिया। खुदावन कहते हैं कि आज तू अपने माइंड को चेंज कर लेगा तो मैं भी अपने माइंड को चेंज कर लूंगा। अगर तू अपना पास्ट भूल जाएगा तो मैं भी तेरा पास्ट भूल जाऊंगा। क्या आज हम रेडी हैं अपना पास्ट भूलने के लिए? जो कुछ हो चुका, हम नए साल में
को तबाह नहीं किया। खुदा ने कहा कि मैंने इसको तबाह कर देना है, लेकिन जब नन्मा के लोगों का खुदा ने एक्शन देखा, उनकी रिपेंटेंस देखी, और खुदा ने अपने माइंड को चेंज कर लिया। आज खुदा चाहते हैं मेरे बेटे और बेटियां जो हैं वो ऐसे रिपेंट करें ताकि उनको माफ करूं और वो मेरी नजदीकी में आए। लास्ट जो है वो है कि अगर हम रिपेंट नहीं करते तो क्या होता है, जो आज का हमने मकाशफा की अंजीर उसका 3 बाब पढ़ा है, तो लिखा है बस याद कर तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा क्योंकि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अगर हम तौबा नहीं करते, गुनाह में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, गुनाह होता है, लेकिन जब हम उससे तौबा नहीं करते कि बाप मेरे से गलती हुई, फिर खुदा कहते हैं कि रिपेंट। तूने कैसे तालीम पाई? तू कलाम को जानता है, लेकिन अगर तू तौबा नहीं करेगा, अपनी पुरानी जिंदगी में ही रहेगा, तो कहते हैं कि मैं चोर की तरह आकर तेरे धनों को मैं बचा दूं। क्योंकि जब हम गुनाह में होते हैं, खुदावंद के वतन से जला वतन हो गई। अगर हम खुदावंद के वतन में हैं तो हम वतन के वतन में नहीं हैं। अगर हम वतन के वतन में हैं तो हम खुदा के वतन से जला वतन है। हमने एक जगह में चूज करना है। आज आप खुदावंद के वतन में रहना चाहते हैं, और चाहे वतन के वतन में रहना चाहते हैं और स्पिरिट के वतन में रहना चाहते हैं, चॉइस इज योर टुडे। खुदा तो चाहते हैं हम रिपेंट करें, जैसे मूसा बेटे ने रिपेंट किया, वापस आया, ऐसे ही खुदा चाहते हैं कि हम रिपेंट करें, मेरे बेटे और बेटियां मेरी नजदीकी में आए। और खुदा चाहते हैं कि हम उसके साथ चले। जो आज का जो हवाला था उसमें लिखा हुआ है कि तू जिंदा कहलाता है पर तू है मुर्दा। ये खुदावंद ने क्यों ऐसे कहा कि जब हम में खुदावंद की स्पिरिट नहीं होती तो हम मुर्दा होते हैं। खुदा तब हम जिंदा होते हैं जब हम में उसकी स्पिरिट आती है। जब हम स्पिरिचुअली जिंदा नहीं है तो हम मुर्दा हैं। बेशक हम खाते हैं, पीते हैं, कामों में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम जिंदा नहीं कहलाते। अकॉर्डिंग टू बाइबल कहते हैं तू है मुर्दा, तू जिंदा कहलाता है पर तू जिंदा नहीं है। जागता रह उन चीजों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। मजबूत हो जा और जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रख, उसको डू नॉट लेट इट गो। जो आज आपके पास खुदा का कलाम है, कीप इट, सेव इट। दुश्मन जो है उसको चराने ना दो, क्योंकि दुश्मन आज यही